السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی میں موسلا دھار بارش سے جگہ جگہ پانی بھر چکا ہے۔ سڑکیں تالاب کی مانند ہو گئی اور لوگوں کی گاڑیاں گھنٹوں پھنسی رہی۔ صرف یہی نہیں، کئی مواقع پر پولیس نے بارش میں پھنسے لوگوں کو مقامی لوگوں کی مدد سے باہر نکالا اور انہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ ممبئی میں موسلا دھار بارش نے ٹرینوں کی آمد و رفت کو بھی متاثر کیا۔ بس اور ریل خدمات کو فوری طور پر روک دیا گیا، جبکہ تیز بارش کی وجہ سے ایک طرف جہاں ٹرین نہیں آ رہی تھی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسٹیشن پر ہی پھنسے ہوئے دیکھے گئے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے کہا کہ چہارشنبے کے روز ممبئی میں تیز بارش ہو رہی ہے۔ محکمے نے ابر آلود اور تیز بارش کی پیشخواسی کی ہے۔ ہندوستان میں ہر روز کورونا وائرس کے معاملے لاکھوں کی الگ الگ تعداد چھو رہی ہے۔ کئی دنوں سے ملک میں ہر روز کورونا کے کل معاملے پہلے 54 لاکھ، پھر 55 لاکھ اور اب 56 لاکھ کے پار ہو گئے ہیں۔ 23 سپٹمبر یعنی آج کی صبح تک پچھلے 24 گھنٹوں میں 83,527 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ حالانکہ ایسا لگاتار 5ویں دن ہے جب وائرس سے ٹھیک ہونے والوں کی تعداد نئے مریضوں سے زیادہ ہے۔ ملک میں اب تک کل معاملے 56,46,010 ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد 45 لاکھ کے پار ہو چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1085 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس وائرس سے اب تک کل 90,020 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے۔ ہندوستان نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور ترکی سے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت قطعی ناقابل قبول ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج 10واں دن ہے۔ راجیہ سبھا سے معطل 8 ممبران پارلیمنٹ کے معاملے پر حزب اختلاف متحد ہیں۔ اپوزیشن نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس کی سربراہی میں حزب اختلاف نے کل راجیہ سبھا اور لوک سبھا کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ شام کو لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے ممبران اسمبلی سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایوان سے باہر نہیں بلکہ اندر رہنا زیادہ معنی خیز ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے اسپیکر سے ملاقات میں کہا کہ راجیہ سبھا میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم نے لوک سبھا سے واک آؤٹ کیا ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن کا آج آخری دن ہے۔ وقت سے پہلے یہ پارلیمنٹ سیشن ختم ہو رہا ہے۔ مشرقی لداخ میں کشیدگی میں کمی کے لیے اپنی نوعیت کے پہلے اقدام میں ہندوستان اور چین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ محاذ پر مزید سپاہیوں کو روانہ نہ کیا جائے اور زمینی صورتحال کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے سے گریز کیا جائے اور ایسی کارروائیاں نہ کی جائیں جن سے معاملات اور پیچیدہ ہوتے ہوں۔ ہندوستان اور چین کی فوج نے ایک مشترکہ بیان میں ان فیصلوں کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اقوام متحدہ کے 75ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرانے ڈھانچے سے نئے چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ عصری دنیا میں کثیر جہتی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس دنیا کو بہتر جگہ بنانے میں اقوام متحدہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس وقت عالمی اداروں اور ممالک کے قریب آنے میں کمی ہے۔ اقوام متحدہ کو اس کے لیے آگے آنا ہوگا، لیکن یہ تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے نئے ممالک کا موقع دینا ہوگا۔ آج کے دور میں ہر ملک کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ یہ کنونشن خود اقوام متحدہ میں تبدیلی کو قبول کرتا ہے۔ ہم آج کے چیلنجز کا مقابلہ پرانے ڈھانچے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ دہلی فسادات کے معاملے میں اسمبلی پینل کے نوٹس کے خلاف فیس بک انڈیا کے نائب صدر اجیت موہن نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اس معاملے کی سماعت آج ہونے والی ہے۔ دہلی اسمبلی کے امن و ہم آہنگی پینل نے اجیت موہن کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اسمبلی کے پینل نے گزشتہ منگل کو فیس بک پر لگے الزامات کی سماعت کے دوران اس کا کوئی نمائندہ پیش نہ ہونے پر اسے آخری نوٹس جاری کیا تھا۔ دہلی فسادات کی سازش کے الزام میں تہاڑ جیل میں قید گلفشاں فاطمہ نے جیل حکام پر فرقہ وارانہ تعصب اور ذہنی اذیت دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ گلفشاں نے ویڈیو کانفرنسنگ میں سماعت کے دوران ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت کے سامنے جیل حکام پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جیل حکام ان پر فرقہ وارانہ تبصرے کرتے ہیں اور انہیں ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، جس پر جج نے گلفشاں کے وکیل کو علیحدہ عرضی داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ MBA کی فارغ التحصیل گلفشاں فاطمہ کو فروری میں شمال مشرقی دہلی میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات سے متعلق ایک معاملے میں تہاڑ جیل میں قید کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دہلی پولیس کی طرف سے انہیں UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ گلفشاں نے سماعت کے دوران کہا کہ مجھے جیل میں ایک مسئلہ درپیش ہے۔ جب سے مجھے یہاں لایا گیا ہے مجھے جیل حکام کی جانب سے مسلسل امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ مجھے تعلیم یافتہ دہشت گرد کہتے ہیں اور مجھ پر فرقہ وارانہ تبصرے کرتے ہیں۔
मुझे यहाँ ज़हनी अजियत का सामना है। अगर मैं खुद को कोई नुकसान पहुंचाती हूं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ जेल के ओहदेदार होंगे। जमीयतुल उलमा हिंद ने पार्लियामेंट में वजारत दाखिला के दिए गए इस बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे गुमराहकुन करार दिया है, जिसमें मुल्क में कोरोना वायरस फैलाने के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया गया है। जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हुकूमत खुद की जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय इसे दूसरों पर थोप रही है, जो बेहद शर्मनाक है। मौलाना मदनी ने कहा कि वजारत दाखिला को अपनी आईनी जिम्मेदारी और पार्लियामेंट के इक़दार का ख्याल रखना चाहिए। हिंदुस्तान में मुतईन सऊदी अरब के सफ़ीर डॉक्टर सऊद अल साती ने मुमलिकत के कौमी दिन पर नई दिल्ली और रियाद के माबीन गहरी दोस्ती और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने 23 सितंबर को सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर कहा कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बतदरीज वुसअत आ रही है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को एक करीबी दोस्त और एक अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर की हैसियत से अहमियत दी है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की तामीर की जानिब एक और अहम कदम रियासती हुकूमत ने बढ़ाया है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने आज फिल्म इंडस्ट्री के कई अहम लोगों के साथ मीटिंग की और इनसे इस सिटी के लिए तजावीज़ और मशवरे मांगे हैं। इस मौके पर उन्होंने ये वादे भी किया कि दुनिया को एक मुकम्मल फिल्म सिटी देंगे, जिसमें आइंदा 50 साल की ज़रूरियात के पेश नज़र तमाम जदीद सहूलतें फराहम की जाएगी। दौरान मीटिंग इनकी जमकर खसीदा ख्वानी भी की गई और फिल्म सनतों के लोगों ने इनके वादों और इनकी कारकर्दगी में मुकम्मल एतमाद जाहिर करते हुए ये उम्मीद जताई कि वज़ीर आला ने जो वादे किए हैं, इनके जो भी फिल्म सिटी के ताल्लुक से मंसूबे हैं, वो सब पाए तकमील तक पहुँचेंगे। ताहम इस मीटिंग में इंडस्ट्री के वही चेहरे नजर आए जो बीजेपी हामी रहे हैं और अक्सर मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के दिफा में खड़े नजर आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी तालिब इल्मों को जहन में रखते हुए बनाई गई है और तहकीकात को बढ़ावा देने के लिए इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तजवीज़ पेश की गई है, जिसके तहत साइंसी मज़ामीन में तहकीक के लिए फ़ंड मुहैया कराए जाएंगे। मोदी ने आज IIT गुवाहाटी के 22वें जलसे तक़सीम असनाद के मौके पर तालिब इल्मों से खिताब करते हुए कहा कि भले ही कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से तक़सीम असनाद की अहमियत बदल गई है, लेकिन फिर भी ये इतना ही अहम है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि कौम का मुस्तक़बिल नौजवानों की सोच पर इन्हिसार करता है। आज से आप सभी के ख्वाब मुल्क की तामीर को हकीकत में एक नई अहमियत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कौमी तालीमी पॉलिसी से हिंदुस्तान एक आलमी तालीमी मरकज़ बनेगा और मुल्क में नए मौक़े पैदा होंगे। एक ताज़ा इंतखाबी सर्वे में ये इशारे मिले हैं कि न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न आइंदा माह मुनक़्क़िद चुनावी इंतखाबात में कामयाबी के बाद अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगी। आर्डर्न ने ताहम आज कहा कि वो इस सिलसिले में किसी तरह की आसानी का मुज़ाहरा करने के हक़ में नहीं है। मुकामी सतह पर कराए गए एक सर्वे में कहा गया है कि आर्डर्न की लिबरल लेबर पार्टी को मुल्क भर में 48% हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी की महज 31% राय दहिंदे तायद कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा है कि सलामती काउंसिल में इस्लाहात वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि 7 अरब इंसानों की खिदमत को 5 ममालिक पर नहीं छोड़ा जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अपने वीडियो लिंक खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा कि बहैसियत इंसान हमें इस वक्त बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, जिनमें सेहत, मईशत, समाजी अमन और मुस्तक़बिल और सबसे अहम कोरोना वायरस की आलमी वबा शामिल है। हमें ऐसी काउंसिल की ज़रूरत है जो जमहूरी, शफ़ाफ और काबिल एहतसाब हो। अबू धाबी फिल्म कमीशन, इजराइल फिल्म फंड और यरूशलेम के सैम स्पीकल फिल्म एंड टेलीविज़न स्कूल ने फिल्म की सनत में 2 तरफ़ा ताउन और तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद के लिए एक मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुश्तरका बयान के मुताबिक इस मुआहदे के तहत अबू धाबी और इजराइल के माबिन सालाना रीजनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। रीजनल फिल्म फेस्टिवल में इमारती और इजराइल प्रोडक्शन के अलावा दोनों ममालिक के इश्तराक से बनने वाली फिल्मों की नुमाइश के मंसूबे का भी ऐलान किया गया। कोरोना वायरस हवा के जरिए फैल सकता है और वायरस के असरअंदाज होने वाले जर्रात काफ़ी अरसे तक हवा में बरकरार रह सकते हैं। अमेरिका के इदारे सेंटर फॉर डिसीजेज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपनी ताज़ा तहकीक में इस बात का इंकशाफ किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तहकीक से कबल कहा था कि कोरोना वायरस अफराद के दरमियान करीबी ताल्लुक़ की सूरत में फैल सकता है। ज़्यादातर 6 फीट के फासले से यह अवाम को मुतासिर कर सकता है, जबकि कोई मुतासरा शख्स को खांसी हो। हाल ही में अमेरिकी इदारे ने नई तहकीक के बाद अपनी गाइडलाइंस को तब्दील किया है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई मुतासरा शख्स गुफ्तगू करे या सांस छोड़े तो ऐसी सूरत में कोरोना के असरात हवा में फैल सकते हैं, जो करीबी अफराद को अपनी जद में ले सकते हैं। तेलंगाना रियासत में नए रेवेन्यू एक्ट के निफाज के बाद रियासती हुकूमत के महकूमा माल की जानिब से प्लॉट्स की फरोख्त का आगाज़ किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से की जा रही मनसूबाबंदी के मुताबिक रियासती हुकूमत के महकूमा माल की जानिब से
शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों के अलावा रियासत के दीगर अजला में लेआउट तैयार करते हुए वेंचर तैयार किए जाएंगे और इनकी फरोख्त के जरिए रियासत की आमदनी में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गैर मंजूरा लेआउट्स में खरीदी जाने वाली जायदादों को बाकायदा बनाने के सिलसिले में स्कीम के आगाज़ और गैर मंजूरा लेआउट्स में खरीदी जाने वाली जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी और बगैर इजाज़त की गई तामीरात के रजिस्ट्रेशन पर आयद की जा रही पाबंदी के सिलसिले में कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से नए रेवेन्यू एक्ट के तहत महकूमा माल के जरिए अराजियात को तरक्की देते हुए वेंचर्स की तैयारी और फरोख्त की मनसूबाबंदी की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से अब तक हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में वेंचर्स तैयार करते हुए इन्हें तरक्की देने के बाद फरोख्त किया जाता था और इस मकसद के लिए सरकारी अराजियात फरोख्त करने के इक़दाम किए जाते थे। लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से रिहायशी मकानात की तामीर के लिए बहुत कम वेंचर्स तैयार किए जाते थे और बड़ी जायदादों के फरोख्त के जरिए महकूमा माल की आमदनी में इजाफे के इक़दाम को यकीनी बनाया जाता था। लेकिन अब रियासती हुकूमत की जानिब से तैयार किए जाने वाले मनसूबे के तहत रियासती हुकूमत रिहायशी कॉलोनियों के तर्ज पर वेंचर तैयार करते हुए फरोख्त करने की मनसूबाबंदी कर रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तैयार किए जाने वाले लेआउट्स और इनकी फरोख्त पर अवाम को एतमाद ज़्यादा होता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में चेहरा शिनाख्ती ऐप के इस्तेमाल की सूरत में सियासी जमातों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने तजुर्बाती बुनियाद पर बल्दी इंतखाबात में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला किया है। चेहरा शिनाख्ती ऐप के इस्तेमाल की सूरत में बोगस राय दही पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ताहम बाज़ गोशों की जानिब से इसे निजी ज़िंदगी में मुदाखलत और शख्सी सरगर्मियों पर निगरानी से मरबूत करने की कोशिश करार दिया जा रहा है ताकि कमीशन को फैसले से रोका जा सके। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में आरटीसी की खिदमात की जल्द बहाली के लिए हुकूमत तैयारी कर रही है। तौक़्क़े है कि जारी माह के अवाखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते में शहर में बस सर्विस की बहाली का आगाज़ हो जाएगा। मेट्रो रेल सर्विस के आगाज़ को 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं और अवाम की जानिब से आरटीसी सर्विस बहाल करने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है। आरटीसी बस सर्विस के आगाज़ की सूरत में गरीब और मुतवस्सित तबक़ात को कम खर्च में तवील सफ़र की सहूलत हासिल हो सकती है। हुकूमत के LRS से मुतालिक जियो से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए बीजेपी MLC रामचंद्र राव की ज़ेर क़यादत हैदराबाद कलेक्ट्रेट पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि LRS से मुतालिक जियो से दस्तबरदारी की जाए, क्योंकि कोरोना वायरस वबा की वजह से लॉकडाउन के बाद अवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही है और अब LRS से मुतालिक जियो से अवाम में और शुकूक व शुबात पैदा हो गए हैं। बाद पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को हिरासत में ले लिया और फिर छोड़ दिया।